সহায়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে উর্দু একাডেমি রয়েছে ইসলামপুরে, সেই উর্দু একাডেমির তরফে আজকে এখানে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বেশ কিছু উর্দু পড়ুয়ারা তারা কিন্তু এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে এখানে এর পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানী তিনিও উপস্থিত ছিলেন, ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন, ইসলামপুরের পৌরসভার চেয়ারম্যান যিনি রয়েছেন কানাইলাল আগরওয়াল তিনিও উপস্থিত ছিলেন, পাশাপাশি যে রাজ্যসভার সাংসদ এবং এই উর্দু একাডেমির যে রাজ্য ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন ডাক্তার নাদিমুল হক তিনিও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে দিন প্রতিদিন ইসলামপুর মহকুমার প্রায় চোপড়া, ইসলামপুর এবং গোয়ালপুকুর এই সমস্ত এলাকাতেই উর্দু পড়ুয়াদের সংখ্যাটা কিন্তু দিন প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু তথাপি এই যে যারা উর্দু পড়ুয়া রয়েছে সেই উর্দু পড়ুয়াদের যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সঠিক দিশা নির্দেশ কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে পাওয়া গেল না এবং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেক প্রতিনিধিকেই কিন্তু আজকে এই বিষয়টার উপরেই বেশি জোর দিতে দেখা গেল। যদিও ডাক্তার নাদিমুল হক একটা আশার সংকেত জানালেন যে এখানে ইউপিএসসির কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং তার পাশাপাশি এখানে একটা বিএড কলেজেরও ব্যবস্থা তারা করছেন। কিন্তু আদতে যেখানে উর্দু পড়ুয়াদের যে পরিকাঠামোর যে দরকার রয়েছে সেই পরিকাঠামো কি আজও রয়েছে বা আগামীতে সেই পরিকাঠামো তৈরি হবে? উর্দু পড়ুয়াদের তরফে কিন্তু উর্দু যারা রয়েছে এখানে কিন্তু একটা ফোরামের তরফ থেকেও কিন্তু তাদের একটা দাবিপত্র পেশ করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে আমি একটু আপনাদেরকে দেখাতে চাইব যে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী তিনি কি বললেন, তার পাশাপাশি জেলা পরিষদ সদস্য জাভেদ আক্তার তিনি কি বললেন এবং আরো বিশেষ যারা রয়েছেন এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি তারা এই যে উর্দু পড়ুয়া রয়েছে এদের বিষয়ে কি বললেন। শুধুই কি অনুষ্ঠান নাকি আদতে এই উর্দু পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে কোনো সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে? প্রথমেই দেখে নিন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কি বললেন। क्योंकि चेयरमैन हैं हमारे ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की वज़ीर आला, वही हैं उर्दू अकादमी के चेयरमैन और नदीमुल हक साहब हैं वाइस चेयरमैन। वो लोग आए हैं, उनके साथ उनका पूरा टीम भी है। 4 जगह 10% उर्दू से 10% ज़्यादा उर्दू बोलने वाले हैं, इसलिए 10% एक बहुत वजन लगता है। वहाँ के लोगों को बंगला समझने में नहीं आती, इसलिए उर्दू को फरोग दिया गया। इसी वजह से ये 4 जगह में एक इस्लामपुर है सब डिवीजन 5 थाने का, और दूसरा है आसानसोल वर्तमान में, तीसरा है खड़गपुर में, चौथा है कलकत्ता गाजीपुर में और इधरपुर में। यहाँ पर 10% से ज्यादा उर्दू बोलने वाले लोग हैं। जो लोग बंगला समझने में उनको तकलीफ होती है, बंगला बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए उस दफा की आवाज में ये उर्दू अकादमी कायम किया गया है। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहे हैं आपको। और नदीमुल हक साहब को आज वो 2 टर्म या 3 टर्म हो गया टर्म का, या 2 टर्म हो रहा है वाइस चेयरमैन बनने का। उनको भी कुछ हम सुझाव देंगे कि किस मकसद से बनाया गया उर्दू अकादमी। सिर्फ गजल करने के लिए
क्या कोई महफिल बनाने के लिए इसलिए नहीं, कुछ काम हासिल करने के लिए क्या किया है, उर्दू वालों के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए। इसलिए हम शरीक हुए हैं कि हम उनको सुझाव देंगे, उनको थोड़ा रास्ता बताएंगे। नवनीत हक साहब हमारे यहाँ पर MP है, वो राज्यसभा के, ममता बनर्जी ने बनाया उनको, उनका ये दूसरा टर्म हो रहा है MP होने का, 6 वर्ष करके होता है राज्यसभा का MP। इस दफा वो हैं और वो हर जगह अपने बात को पेश करते हैं। तो हम कहते हैं क्या हमारे उर्दू एकेडमी, क्या ये हमारे बच्चियां यहाँ पर आए हैं, ये लड़कियां जो आए हैं, हमारे ये लोग स्टूडेंट छात्र सब जो लोग आए हुए हैं, ये सब सुनने के लिए उर्दू में हम लोग का कुछ गुंजाइश है कि नहीं, उर्दू से पढ़ने से कोई हम लोग को कुछ फायदा है कि नहीं, उर्दू में हम हमारा लिखा पढ़ी करेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर है कि नहीं। आपको ये बताना होगा कि नदीम साहब, उर्दू पढ़ने वालों के लिए है फ्यूचर। ममता बनर्जी ने वादा किया है, पश्चिम बंगाल की वज़ीर आला ने वादा किया है कि हम हर गिरोह को, हर तबके के लोगों को हम पूरा तरक्की देंगे, चाहे उर्दू बोलने वाला हो या हिंदी बोलने वाला हो या कामतापुरी बोलने वाला हो या नेपाली बोलने वाला हो या कोई भी बोलने वाले हो, उसके जुबान के लिए, उसके बोलीचाली के लिए हम उसको डिप्राइव नहीं करेंगे। जैसे कि एक बार डिप्राइव हो गया था हमारे भारत का एक लड़का, डॉक्टरी पास किया हुआ है वेटरनरी का, लेकिन उसका फर्स्ट लैंग्वेज था उर्दू, उसका फर्स्ट लैंग्वेज था उर्दू, नहीं बोलता है। और डॉक्टरी पास किया था वेटरनरी डॉक्टर का, इंटरव्यू भी पास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनल अपॉइंटमेंट टाइम में तो नए लोग इंग्लिश के, उसका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू था बोलते थे। अब तो हम बोलते थे भट्टा चीफ मिनिस्टर से हम पकड़े उसको, बोले ये क्या कर रहे हैं, आपके मवेशी की पास क्या उर्दू बोलना पड़ेगा, मवेशी के डॉक्टर को क्या उसको उर्दू बोलना पड़ेगा, बांग्ला बोलना पड़ेगा तभी कुछ होगा, कैसे ऐसे करते हैं। वो तो डॉक्टरी नॉलेज है वेटरनरी का। उन्होंने बताया हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर गौर नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी ममता बनर्जी ये सब गलतियां नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक जनक रेड्डी है, पब्लिक की आवाज पर वो गौर करती है, पब्लिक की डिमांड को वो गौर करती है। इसलिए हम कहेंगे कि आप लोगों से, हमारा एक बोली थी उस जमाने में कि ये उर्दू अकेडमी जो हम लोग को बनाया है, इसमें हर कुछ कर अभी जो कन्हैया अग्रवाल बोलते हैं कि एक तो हम लोग कोचिंग सेंटर चाहिए, इसमें से बनना चाहिए, और ये कोचिंग सेंटर में यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियाँ जो है तो शौक है आगे बढ़ने का, ऊंची तालीम हासिल करने का, उच्च तालीम तक पहुँचने का, तो वो इस कोचिंग सेंटर के जरिए आप सिर्फ डिमांड कीजिएगा, यहाँ हाजिर हो जाएगा ममता बनर्जी, साइकिल कर देंगे वो कि उर्दू अकेडमी की तरफ से ये कोचिंग सेंटर का या यहाँ पर WBCS की तैयारी हो सकती है, यहाँ पर नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है, जिसमें लड़कियां और हमारे लड़के लोग चांस पाएंगे। ये कोचिंग सेंटर तो होना चाहिए। और साथ तक हम ये बोलना चाहते हैं कि उस जमाने में हम लोग बोले ये उर्दू अकेडमी की जैसे ये 4 जगह है उर्दू ज्यादा बोलने वाले लोग, अब जो साहब यहाँ पर है बंगाली है, वहां पर वो जो आदमी जो एप्लीकेंट है वो जाके बोलता है तो जो बंगाली है वो बोलते नहीं है। इसलिए जो कहा गया था कि जो उर्दू ट्रांसलेटर उनके बगल में दे दिया जाए। उस समय के मुख्यमंत्री को, उस जमाने के वजीर आला को, ज्योति बासु को, मदन भट्टा जी को कहा गया था कि एक आदमी जाएंगे वहां पर उर्दू बोलने वाला,
एक जो बंगाली है वो समझते नहीं है, तो एक तो ट्रांसलेटर उर्दू जो है, जो जानने वाला बांग्ला में समझता है, उर्दू जानता है, तो वो एनजीओ को समझाएंगे बांग्ला में कि ये आदमी ये बोलता है, इसलिए तो लड़का का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, चाहे वो बीए पास का हो या एमए पास का हो। ये तो इम्प्रूवमेंट जनरेशन करता है इस टाइम की बात, इम्प्रूवमेंट जनरेशन, नौकरी बढ़ाने की बात थी। एक लड़का बीए पास कर गया, उर्दू पास, उर्दू में एमए पास किया उर्दू में, उसको कहाँ छुपाएंगे हम? फिर वही बिजनेस का बोरा लेकर के घूम कर चलेगा, जहां मोटरसाइकिल बेच के चलेगा, एमए पास होकर के, बीए पास होकर के। तो ये क्यों नहीं एनजीओ के पास बैठ करके एक नौकरी पाएंगे? ये हम लोग उस तरह बोले थे, एक ट्रांसलेटर रहे एनजीओ के पास में, बीडीओ के पास नहीं, क्योंकि लोग बांग्ला समझते, बंगाली हैं, उर्दू समझते नहीं हैं। और ये हमारा इलाका इस्लामपुर, वालपुर, चोपड़ा, हमारा करंदगी, चकलिया, यहाँ पर उर्दू वाले लोग, बोलने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सुविधा देना चाहते हैं। जब सरकार देना चाहती है तो वो सुविधा हमको लेना चाहिए। इसलिए हमारे नामीउल हक साहब को जब हाइस्ते बने उर्दू अकेडमी के, आप एक तो बनाइए डिमांड कि हमारे आज 10 वर्ष से मजहब से मैडम आप आए हैं, उर्दू का बहुत तरक्की हुआ है हमारे पश्चिम बंगाल में, लोगों की उर्दू से बहुत दिलचस्पी है, उर्दू बोलने वाले लोग बहुत खुश हैं आपसे ममता बनर्जी, इसलिए आपके पास ये हमारा डिमांड है। उस समय में भी डिमांड था वामफ्रंट के जमाने में, और आज का भी आपके जमाने में है। आप ये तीसरे बार के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार के वजीर आला हैं आप, तीसरी बार मेरा 15 साल चल रहा है आपका, 15 वर्ष से आप मुख्यमंत्री वजीर आला हैं, तो फिर उर्दू बोलने वालों के लिए कुछ फायदा करके जाइए ममता जी, कुछ फायदा कर दीजिए उनको, दे दीजिए जो डिमांड था उनका। एनजीओ के बगल में एक उर्दू ट्रांसलेटर, बीडीओ के पास एक उर्दू ट्रांसलेटर, डीएम के पास एक उर्दू ट्रांसलेटर, ताकि लोग अपना उर्दू जानते हैं। आप किसी को 25,000 को फीस देता है, कोई तो धक्का सीखने के लिए 500 रुपया, अब अंग्रेजी में इसके लिए 500 में रहेगा, उसे हैरान होगा कि 500 में रहेगा तो धक्का सीखने के लिए। अब की पूरे बाबू अंकल वो बोलते थे, इसलिए हमको दे देना पड़ा। अब वो तो अंग्रेजी में या बांग्ला में एक तो दरखास्त करने जाएगा तो वो 400-500 बच्चे के तब तक लिखता है, इसलिए अगर वो अपने जुबान में उर्दू में लिख के ले जाए और अगर उर्दू ट्रांसलेट रहेगा तो हिंदी को बुझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आप ये काम कीजिए, दे दीजिए हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, हमारे वजीर आला ममता बनर्जी को, वो गौर करेंगे और वो चाहते हैं तो सबको खुश रखने के लिए, बंगाल के हर तबके के लोगों को खुश रखने के लिए वो परेशान रहते हैं। वो सब कहना चाहते हैं जिससे आवाम खुश हो, जनता खुश हो, पब्लिक खुश हो, माँ बहनें खुश हो, भाई बंधु खुश हो, ये चाहती है। आज तक जो करके आई है वो बेमिसाल है। जितना उन्नति तरक्की का काम स्कीम निकाले हैं वो, जो भारत में मैंने हिंदुस्तान में किसी राज्य में, किसी क्या बोलते हैं रियासत में इस किस्म का कोई मुख्यमंत्री या वजीर आला काम नहीं बनाया है लोगों की भलाई का, जो कि हमारे ममता बनर्जी बनाई है। आज विदेश में भी, गैर मुल्कों में भी इनकी तारीफ है ममता बनर्जी की। सर्टिफिकेट भेजते हैं कि ममता बनर्जी आप बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं लोगों के लिए, वहां से भेजते हैं लोग, यूनेस्को से, कहां से। इसलिए हम कहेंगे ममता बनर्जी का नाम को आप लोग और बढ़ाइए,
हम कहते हैं कि हमारे प्रशासन जो लोग हैं वो लोग भी ऐसा लोगों को साथ व्यवहार करके जो ममता बनर्जी बदनाम ना हो, ममता बनर्जी बदनाम ना हो, आप लोग प्रशासन वाले काम करें ठीक से, चाहे वो डीएम प्रशासन हो या एसपी प्रशासन हो। ममता बनर्जी जहां बदनाम ना हो ऐसा काम आप लोग करें। हम तो यही कहते हैं। आज हमारे ये बच्चे सब आए, वो तो वीडियो करके सब आए कि हम लोग के लिए कोई अच्छी बात बोली सुनाई जाए, कोई कुछ मिलेगा पूरा कुछ देंगे आप लोग, चेक पर डालेंगे वो तो, लेकिन जो असल मकसद हमारा है उनको अकेडमी करने का वो पूरा करना होगा। बहुत किया है इसमें, आप और भी और गवर्नर ने जहां से दूसरी जगह से अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है उसको अकेडमी का वहां से लाइए, दिल्ली से लाइए और कुछ कीजिए। खाली एक महफिल जमा करके बैठ करके कुछ भाषण हो तो हम लोग दे दिए चले गए, नहीं होगा। अभी हमारे ये नेता लोग जो हैं आज बरसों से हैं, ये लोग जिसके नाम अभी हम आपको पढ़ के सुना है, इनको हम अभी स्वागत किए, इनको हम खुश आमदीद कहे, वेलकम किए। सब आप लोग वहाँ बैठते हैं, बैठते मीटिंग करते हैं, आप निकालिए ऐसा तरीका जिससे लोगों के लिए कुछ भलाई किया जाए। या खेजरपुर में, भागल खड़गपुर में, आसानसोल में, इस्लामपुर में, यहाँ पर उर्दू अकेडमी के सेंटर पर जो है इस सब के जरिए से लोगों को फायदा पहुँचाया जाए। यहाँ पर तो एक ही इंटरव्यू है, एक ही वीडियो है। यहाँ पर आपका डीएम है, यहाँ पर डीएम है, बोलेंगे टाइम होगा, प्रिंट छोड़ना होगा आपको कि हमको इसे शॉर्ट का माना गया। सुबह ये एक नाइट होल्ड कीजिए तब जाइए, काम करके जाइए। इसलिए हम कहते हैं क्या कि हमारे नदीमोल साहब घर साहब को जो ओवर चांस मिला है वो वाइस चेयरमैन हैं उर्दू अकेडमी के। यहाँ पर कुछ लोगों का जो डिमांड है हमारे बच्चे लोग जानते नहीं हैं, आप अपना लिस्ट मुताबिक जनाइए कि ये काम हम लोग कर सकते हैं उर्दू अकेडमी के जरिए से। आप लोग का अगर कोई सुझाव हुआ तो दीजिए। हम इतना बड़े के मेरे हैं और हम हिंदी भी पहले थे, उसके बाद उर्दू भी थे, पहले इंग्लिश में थे, इसलिए 3 लैंग्वेज में हम पढ़े हैं। ऐसे उर्दू के हम जानते हैं कि स्रोत के लिए आप जैसा तरीका होता है वैसे आप कीजिए, क्योंकि दूसरे आपको जाना जरूरी है। इसलिए हम अपनी बात नहीं खत्म करते हैं। हमारे जितने बच्चे जो है, हमारे जितने लोग हैं, जितने हमारे यहाँ की स्थानीय एमएलए जनाब चौधरी अब्दुल करीम साहब ने कहा डीएलएड बीएड के बारे में, और खुशी इस बात की है कि इस्लामपुर के माटी पर तरक्की एजुकेशन वाइज कैसे होगी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बहुत पहले से सोच रही पूरे पश्चिम बंगाल के लिए। उस चीज़ को 2011 से जो एस्टेब्लिश हुई गवर्नमेंट, तब से वो चिंता में है। ये उर्दू अकेडमी वही चौधरी साहब उस MIC थे, उसी वक्त से चल रहा था। आज उसको यहाँ पर देख करके बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे जो वाइस चेयरमैन है उर्दू अकेडमी के, चेयरमैन हमारे ऑनरेबल CM हैं, वाइस चेयरमैन नदीमुल हक साहब हैं। इन्होंने हर डिमांड के एक्सेप्ट करते हुए एक आश्वासन, एक वादा करके जा रहे हैं। हमने एक यहाँ पे क्या कि उर्दू अकेडमी के ज़रिए से हमारी CM बहुत कुछ दे रही है, लेकिन साल में एक बार मीटिंग होने के बाद और फिर इसका कोई चर्चा नहीं होता है, कोई प्रचार नहीं होता है। तो इस चीज़ को इस लोगों तक पहुँचाने के लिए क्यों ना हम ग्रास रूट तक पहुँचे, अंचल वाइज, ब्लॉक वाइज अगर हम लोग उर्दू अकेडमी के नाम पर अगर मीटिंग हम लोग करना शुरू करें तो हमारे गांव से भी लोग उत्साहित पाएंगे, वो लोग का भी हौसला बुलंद होगा, वो लोग भी जानेंगे कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री क्या सोच रही हैं और आगे के लिए उर्दू अकेडमी क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है यहाँ, ताकि हमारे गांव से भी चलकर बच्चे लोग इधर उधर नहीं भटके, इससे तो लाभदायक हो। ये डिमांड मेरी तरफ से रहा जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के माध्यम से हमारे इलाके के सारे पढ़े लिखे जितने भी लड़के हैं, पढ़ने वाले भी हमारे बच्चे स्कूल में हैं, बच्चियां हैं, सबों तक ये मैसेज जाएगी। आने वाले दिन में हमारे इस्लामपुर का यहाँ पर भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। थैंक यू सर।
আমাদের উর্দু মিডিয়াম স্টুডেন্ট ফোরাম আমাদের অর্গানাইজেশন, আমরা 6 মাস আগে এটা গঠন করেছি। এই অর্গানাইজেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে উর্দু মিডিয়াম স্টুডেন্টরা এইচএস পাস করার পরে ওরা ডিএলএড কোর্স করতে পারে না। ডিএলএড কোর্স না করাতেই ওরা চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারছে না। তো আমরা চাইছি শুধু আমাদের ইসলামপুর সাব ডিভিশন না, উত্তর দিনাজপুর অথবা আমাদের পার্শ্ববর্তী যেগুলো জেলা আছে সেই জেলাও তো ডিএলএড ইনস্টিটিউট নেই। শুধু পশ্চিমবঙ্গে একটা ডিএলএড ইনস্টিটিউট আছে, ওটা হচ্ছে হুগলি। তাই আমরা আজকে দেখা করলাম আমাদের সংগঠনের যারা আছে, আমরা সবাই দেখা করলাম এমপি নাদিমুল হকি সাহেবের কাছে এবং গোলাম রব্বানী সাহেবের কাছে, মিনিস্টারের কাছে। আমরা চাইছি যে ইমিডিয়েটলি যে উর্দু স্টুডেন্টদের নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করুক উর্দু একাডেমি। কারণ উর্দু একাডেমি আমরা আগে জানতাম যে উর্দু একাডেমি উর্দু স্টুডেন্টদের নিয়ে কিছু ভাববে, তাই আমরা এতদিন ধরে কিছু বলিনি। আজকে আমরা বললাম শুধু আমাদের উর্দু স্টুডেন্টদের জন্য শুধু ডিএলএড ইনস্টিটিউটটাই সমস্যা না, সমস্যা হচ্ছে উর্দু গার্লস হাই স্কুলে টিচারের অভাব আছে। উর্দু গার্লস হাই স্কুলে 2টা টিচার, উর্দু বয়েজ হাই স্কুলে একটা 3 বছর আগে অ্যাপ্রুভ হয়েছে, কিন্তু এসডিও স্যার এর আগে ওখানে ল্যান্ড অ্যাকোয়ার করতে পারেনি, এখনও ল্যান্ড অ্যাকোয়ার করতে পারলো না। তো এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা দেখা করলাম এমপি সাহেবের সঙ্গে। হ্যাঁ, এটা আমরা ডেপুটেশন আকারে ওনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি। কি আশ্বাস দিল? হ্যাঁ, উনি বলছেন যে আমরা এখানে একটা ঘোষণা করব, একটা ভালো ঘোষণা করবো উর্দু স্টুডেন্টের জন্য। দেখি আমরা এখন আজকে ঘোষণা করবেন উনি বললেন আমাদের। আপনার নাম? আমার নাম সাদেক আলী, আমি উর্দু মিডিয়াম স্টুডেंट फोरम में एक सदस्य। सबसे पहले तो शुक्रिया, आज उर्दू एकेडमी का यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बहुत सारे बच्चे आए, सिट एंड ड्रॉ में, क्विज में आके पार्टिसिपेट करके गए, पूरे इलाके के बच्चे, और बहुत सारे उनके गार्जियन हजरात भी आए। हमारे स्टेज पर एक उसको क्या बोलते हैं, चांदेर हाट पूरा छिलो। तो हमारे मंत्री जी भी थे, गुलाम रब्बानी साहब, हमारे सीनियर एमएलए अब्दुल करीम चौधरी साहब, म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हमारे कन्हैया लाल अग्रवाल जी, हमारे मिनहाज आरफीन साहब एमएलए भी थे, और भी बहुत सारे यहाँ के अधिकारी थे। हमारे जावेद भाई जिला परिषद के हैं, इस्लामपुर के डिप्टी वो भी थे, चेयरमैन भी थे, वाइस चेयरमैन भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे। हमारी बहुत बड़ी टीम कलकत्ता से आई है, आप देख सकते हैं, हैदर साहब हैं, इश्तियाक भाई, और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। वो इसीलिए आई है कि इस्लामपुर को हम लोग सीरियसली ले रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता में उर्दू एकेडमी सिर्फ थी, उसके बाद उर्दू एकेडमी के 2 शाख माने 2 ब्रांच हुए, एक आसनसोल, एक इस्लामपुर, और इन तीनों ब्रांच में जो सबसे बेस्ट बिल्डिंग है वो इस्लामपुर की बिल्डिंग है। आज मैं ये कह सकता हूँ फख्र के साथ। तो हम लोग अब चाहते हैं कि जब बिल्डिंग बन गई, बीच में कोविड का मामला था, कुछ डिले भी हो गया, लेकिन आज सब चीज़ क्लियर हो गया, तो अब इस बिल्डिंग का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। मैं ये सुझाव का वेलकम करता हूँ कि यहाँ बीएड कॉलेज होना चाहिए, यहाँ कोचिंग होना चाहिए, यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए। और हम लोग अपनी कमेटी में फैसला ये किए हैं कि जो कलकत्ता में होता है, चाहे वो कंप्यूटर क्लास हो, चाहे ट्यूशन सेंटर हो, चाहे बंगला पढ़ाने का क्लास हो, क्योंकि हम लोग बंगला पढ़ाते हैं उर्दू वालों को, और जो बंगला वाले हैं उर्दू सीखना चाहते हैं उनको उर्दू भी पढ़ाते हैं। तो एकेडमी के जितने प्रोग्राम हैं वहाँ पर सारे को यहाँ पर शुरू करना है। एकेडमी में एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, यहाँ भी लाइब्रेरी शुरू करेंगे, वहाँ बच्चों का रीडिंग रूम है, यहाँ भी शुरू करेंगे रीडिंग रूम। और जो 2 मेन सुझाव आए हैं, एक तो आया है कि यूपीएससी या WBCS के कोचिंग, जैसे हज कमेटी वहाँ करा रही है, तो हमारी मंत्री जी से बात हुई है, जो हज कमेटी करा रही है, हम लोग यहाँ पर क्योंकि जगह है खाली, हम लोग हज कमेटी को जगह देने को तैयार है। वो लोग आकर करके यहाँ पर अगर शुरू करना चाहें बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी शुरू करना चाहे तो हम लोग भी देखेंगे कि कैसे करके यहाँ शुरू करें, लेकिन शुरू होगा जरूर किसी न किसी तरीके से। इस्लामपुर को हम लोग अपने राइडर में हम लोग ले रहे हैं, और जो काम कलकत्ता में हो रहा है यहाँ भी होगा। और आखिर में मैं बोल दूं कि जो बीएड कॉलेज की बात उठी है, हमारे चौधरी साहब ने भी कहा, हमारे मंत्री जी ने भी कहा, गुलाम रब्बानी साहब ने, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर उर्दू का एक बीएड कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। हम लोग डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, बहुत आगे तक बात हो चुकी है, और जो चलाएंगे कॉलेज उन लोग से भी बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी मैंने जैसे अनाउंस किया अपने स्पीच के दौरान कि बहुत जल्दी एक खुशखबरी इस्लामपुर के वालों के सामने आने वाली है। तो बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से ये आपके सामने ये बात खुलकर जाहिर हो जाएगी कि किस तारीख से हो रहा है, क्या हो रहा है।
सब आपके सामने हो जाएगा। लेकिन वी आर कमिटेड टू बीएड कॉलेज इन इस्लामपुर इन द उर्दू एकेडमी। और एक सवाल हाँ सर, और एक सवाल है कि यहाँ उर्दू जानिब की संख्या या तादाद कह सकते हैं 15-20% से भी ज्यादा है। कुछ कुछ स्कूल्स में उर्दू टीचर का बहाली अभी तक ठप हुआ है। आप ममता बनर्जी जो सीएम हैं उनके बहुत करीब हैं, यहाँ के उर्दू जानिब लोगों के लिए क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ है। जो स्कूल की बात है तो स्कूल जो है उर्दू एकेडमी के अंडर में नहीं आता है, स्कूल डिपार्टमेंट के अंडर में। यहाँ पर हमारे करीम साहब हैं और भी जो लोकल प्रतिनिधि हैं, अगर उनको मैं मशवरा दूंगा कि हमारे ब्रात्यो बासु हमारे मिनिस्टर हैं उनको लिखे, और वो खत जो लिखेंगे वहाँ पर कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ स्कूल में टीचर नहीं है, उसका मुझे एक कॉपी दें, तो मैं ब्रात्योदा के साथ बैठ करके उनको बोलूँगा कि भाई ज़रूर ये सब काम कर दें। ये बीएड कॉलेज के बारे में आप आज जिक्र किया अपने तकरीर में, कब तक हो सकता है? न्यू सेशन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। अब देखिए, गवर्नमेंट का काम है, आपको मालूम है, थोड़ा बहुत देर भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। इसमें कमिटमेंट हमारा है कि हम पक्का है कि हम लोग करेंगे। वाला भी बोल दिया। और ये है कि ये हॉल जैसे है, हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जिसको किसी को कोई अदबी प्रोग्राम हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम करना हो, तो ये हॉल को हम लोग मिनिमम रेंट पे, मतलब 1000-1500 रुपया में लेकर के हम लोग दे भी सकते हैं कि आइए, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस्लामपुर वाले, आपका कोई छोटा प्रोग्राम हो, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, आइए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कीजिए। एकेडमी का ये हॉल है, इसको भी यूज़ कीजिए। बहुत मामूली रेंट है और बहुत अच्छे से आपका प्रोग्राम यहाँ हो सकता है। बुक रिलीज हो, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो, कोई शाम गज़ल हो, कुछ भी हो, कोई मुशायरा हो, आप आकर के यूज़ कर सकते हैं। আপনাদেরকে এখানে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধি যারা রয়েছে তাদের বক্তব্য কিন্তু শোনালাম। পাশাপাশি যে রাজ্যসভার সাংসদ নাদিমুল হক তিনিও কি বললেন সেটাও আপনাদেরকে শোনালাম। আমাদের এখানে আমরা যেটা জানতে পেরেছি, এই গোটাই উত্তর দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় 2 শতাধিক চাকরি প্রার্থী উর্দু মাধ্যমে তারা কিন্তু বসে রয়েছে। তাদের চাকরির এখনো পর্যন্ত কোনো নিশ্চয়তা নেই। এদিকে দেখা যাচ্ছে স্টেট ফার্ম কলোনি হাই স্কুলে উর্দু শিক্ষকের অভাবে কিন্তু সেখানে পড়ুয়ারা যাচ্ছেন না। একটা মাত্র উর্দু মিডিয়াম গার্লস হাই স্কুল রয়েছে, তাতে করে আজকে এখানে এই ইসলামপুরে যে যারা উর্দু নিয়ে পড়ছেন তাদের ভবিষ্যৎ ঠিক কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে নিয়ে কিন্তু একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেল। আজকে এই অনুষ্ঠান থেকে কিন্তু যারা উর্দু পড়ুয়া রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে সেরকম সঠিক কোনো মন্তব্যই এই প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কিন্তু পাওয়া গেল না। আখেরে যারা উর্দু নিয়ে পড়ছেন তাদের ভবিষ্যৎটা কোন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা অবশ্যই আগামী দিনে জানা যাবে। উর্দু পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ঠিক কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা নিয়ে কিন্তু একটা অনিশ্চিত থেকেই গেল। আপাতত উর্দু একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি। এই ধরনেরই বেশ কিছু খবরের জন্য চোখ রাখুন লাইভ নিউজের পর্দায়।